हीरालाल जी, हाउ आर यू? बस आशीर्वाद है सर आपका। बहुत बढ़िया। आज आपके भाषण हम लोग सब सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो बात नहीं है। और प्रवीण कैसे हो? बिल्कुल ठीक। All your blessings. We Good. keep seeing you all very active, sir. Very active on the all the front. I think. Always. We can. I read your good articles and also. Thank you, प्रवीण। Thank you, sir. तुम्हारा फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक चल रहा है? अवोक? हाँ सर, बिल्कुल। We are doing programs on financial education all over. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Thank you, sir. सर 4:31 हो रहा है, अगर अनुमति हो तो 4:32 पर हम कार्यक्रम को शुरू करें सर। हाँ बिल्कुल करिए। राइट सर। मेरे ख्याल से 4:35 कर लीजिए आप, तो ठीक रहेगा। 5 मिनट दे दीजिए। Fine. We'll make it 4:35. Right, great, sir. We will have some. In the light of Indian mindset. Yes, sir. Well said, right, sir. Well said, sir. LMA की परंपरा है, सब टाइम पे शुरू होता है, वैसे बिल्कुल डॉट पे। उसी परंपरा के निर्वहन में मैंने ये शब्द बोल दिए सर। लेकिन वर्चुअल प्रोग्राम में काफी लोग बोर हो गए, तो इसलिए वर्चुअल में वेट करना पड़ता है 5 मिनट। नहीं, people are joining very fast, sir. People are तभी मैंने कहा very fast and joining very fast. करेक्ट, तभी मैंने कहा 5 मिनट का वेट अच्छा रहेगा, लोग बेसिक जरूर सर। That's fine, sir. That's fine, sir. Another 3 minutes to go. Yes. शिशिर जी भी आ गए हैं। शिशिर जी, I can see lot many of our senior members, Dr. Kirti Narayan, Mr. Shishir Jindal, Mr. Madhvendra Prasad, Mr. Praveen Dwivedi, another name, sir, Praveen. I know, yes. Devesh, Jory sir also. Oh, great. Mr. Jory also joining. Great. Yes. Great to see his name on the screen. Yes. नहीं, इसी बहाने मुलाकात होती रहती है, कुछ बातें होती है, बड़ा ठीक है। अदरवाइज तो कोरोना ने जो अभी तीसरे का हल्ला भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। लोग खाली चाय कॉफी और स्नैक्स से मरहूम हो गए। तो वो एक थोड़ा वो रहता है लोगों को, बाकी तो जुड़ना हो जाता है, लेकिन वो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए। Let us hope and pray कि we meet very soon each other, yes. Very in near future. Let's hope. मैंने कहा वर्चुअल रिफ्रेशमेंट करा दीजिए। बिल्कुल। समोसा सबको दिखा दीजिए, एटलीस्ट वी फील हैप्पी। स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं सर। Yes. Well said, sir. Well said. विजुअल ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा सर। बिल्कुल। सर मुझे आपसे मिलना है जल्दी ही, कुछ बातें करनी है, मैं जल्दी आता हूँ सर। आइए बिल्कुल आइए। हाँ, इधर काफी कुछ इकट्ठा हो गया है। अच्छा, गुड। आइए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए सर, सौरभ। गुड आफ्टरनून सौरभ जी। So now we can start. It is 4:35. With due permission from Mr. Alok Ranjan sir. Yes, please go ahead. Thank you, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Rajiv Pradhan on behalf of Lucknow Management Association. I, on my personal behalf as well as on behalf of Lucknow Management Association, welcome you all for this session on realizing business potential in villages by Dr. Hiralal ji. It is my honor to introduce Dr. Hiralal
an IAS officer, and of course, LMA member also, a life member. Dr. Hiralal ji was born in village Bagji, district Basti in Uttar Pradesh. Initially, he lived in deep rural area, farming environment. He is BTech in electrical engineering. He has a master's degree in public administration from Maxwell, United States of America. He has completed his PhD from EKTU, Lucknow. He started his career as engineer at NTPC in March 1993. He started working as a PCS officer in July 1994 as an IAS officer in 2010. He has served in many positions in government of UP. Dr. Hiralal ji was district magistrate Banda. He should better be named as Banda Fame DM, what I feel personally, for 1.5 years. He has received many awards for his innovative work and out-of-box working style. Currently, he is Additional Mission Director, National Health Mission, Uttar Pradesh, and Additional Project Director, Uttar Pradesh State AIDS Control Society, Lucknow. Dr. Hiralal ji is currently also an honorary mentor of Model Gaon project, which is based on his celebrated development experiments in Banda as district magistrate. Model Gaon, in fact, is his own brainchild. As I shared just before, he is also a life member of Lucknow Management Association. So we welcome you, Dr. Hiralal ji. Thank you. Ladies and gentlemen, today we also have the privileged presence of Mr. Alok Ranjan ji, former Chief Secretary, Uttar Pradesh, who is with us this evening, and I feel he does not require any introduction, nor I dare to say anything. Mr. Alok Ranjan ji has been president of Lucknow Management Association for 2 terms, that makes 4 years. And out of the 4 years, Lucknow Management Association won the award of Best Management Association Award Pan India for 3 consecutive years, which is a history in the which is record in history of Lucknow Management Association. A very warm welcome, sir. Thank you. So now I'll invite Mr. Alok Ranjan ji for his opening remarks on the topic of this session. Over to Mr. Alok Ranjan ji. Thank you, Rajiv. Thank you, LMA. Thank you for inviting me once again to be a part of you all. And I'm always a part of LMA. I've never been away from it. Whether I was president earlier, I'm still a member of your executive committee. I'm still Always there. sir. Yes. So I'm always a part of LMA, and I'm very happy to see the kind of work that has been done by Lucknow Management Association as you continue to come up with very, very interesting topics, very brilliant speakers. People have really contributed. बहुत काम किया जिन लोगों ने आपने उनको बुलाया है, and in that light उसी कड़ी में you have called Mr. Hiralal today. I think a colleague of mine, the IAS, and a very brilliant officer, and you have called him today to address you on a very innovative thing that he is doing. आप उनके मुंह से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा. मैं बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे. Business potential in village तो अलग बात रही, but you must listen to what he says. He has started this model Gaon concept. Model Gaon means a model village. And he says he will develop a village manifesto. Or कौन develop करेगा village manifesto? Who will develop? It is only the people in the village. He is identifying social volunteers from the village, active people who can be trained, and then they go to the village, motivate the village people to think about their own development, plan their own development, implement their own development. I mean, गांव स्वराज्य वाला concept आप लोगों ने सुना है ना? बहुत. We have heard about it. गांव स्वराज and village self-republics. We have heard the concept of Gandhi ji talking about Gaon Swaraj. But yeah, actually in this age, Hiralal is working on this concept of Gaon Swaraj, and he believes in it. He believes in it. Many of you might think that this is some outdated concept in this time of modernization and everything, but Hiralal doesn't think so. He believes in it, and he's actually working at it, and he's actually making it possible. These are the big things that I like to say about Hiralal. He's actually making things possible at the field level. A lot of work has already been done by him, which he will talk to you about. He was district magistrate Banda. So Banda, I have also been DM Banda way back in 1991.
Banda is, very backward district of Bundelkhand area. And in that district, he has made a name for himself. He is known for his innovative ideas of development. He did not sit in his office. He moved out of his office. He went to the villages. He went to where the people were living and facing problems. And there, sitting with them, he solved their problems. Any innovative things he did out there for water conservation, for removal of poverty, for, environmental upgradation, many steps he took, but very innovative. And you know that he was recommended for Prime Minister's award for that, and he would have got it also. He was number one, ranked number one by the committee. It was a different matter. There was some rule saying that only those people who are in the job at the moment can apply. That means if he was only DM Banda, he could have applied, but he had been transferred by the government. So because of that technical problem, he could not, could get the award, but the committee had rated him number one. That is aware. They said, इतना अच्छा काम तो किसी ने किया ही नहीं है, इतना innovative और इतना creative काम जितना हीरालाल जी ने किया है वहाँ पे. तो मैंने पाया कि अच्छा, when I sit with him and talk, जैसे इन्होंने अभी कहा कि आपके पास आना है, बहुत कुछ बात करनी है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये आते हैं बात करने, because he comes with ideas and he comes with new concepts, or he is very, careless in what he says. He doesn't care कि मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये सही है कि गलत है, or is this politically correct to say it? No, he is not concerned. He is emotional, and from his emotions he says what he wants to say, what he thinks is right, what he thinks is wrong. And it's very interesting always to have a discussion about the development of the country with him, because he is committed. He is committed to the development of the country. He is committed to do something for the country. And he's one of those few IAS officers who are so academic. He is, as you said, that's now, he's done his BTech, he has done his Masters in Public Administration, and he is doing his PhD also from IIM Lucknow. He's doing his PhD. I think he's completed it also, if I'm not wrong. He's completed. That is done, sir. Done. Yes, he has completed his PhD. So he's the kind of IAS officer who's so academic and different in his thinking. He goes to Lucknow Management, IIM Lucknow to take classes also, lectures also on various topics. He goes there as a resource person, and he's always associated with the faculty out there. So this concept of today's topic is business potential in the villages. Let us hear him talk about it, because we talk of business potential, we always think of big names. We think of Ambani, Adani, we think of hundreds and crores of investment, that we talk of business potential. But actually, in a state like UP, where there is so much of poverty, backwardness, where agricultural economy is the main thing, it is this rural area where if industrialization can begin. If rural industries go to the people out there, and people can move from farm employment to non-farm employment in rural areas, get a higher wage rate, to have a better quality of life, the whole scenario will change. मतलब इंडस्ट्री को उठ के उनके पास जाना पड़ेगा जो हमारे विलेज में लोग रहते हैं, और उनके जो प्रोड्यूस है उसमें वैल्यू एडिशन करना है, वहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको डेवलप करना है. So many artisans out there. You will be amazed. Many of the products we see out here, चाहे हमारे कारपेट्स जो हम देखते हैं, चाहे हमारा ये टेक्सटाइल्स के चिकनकारी वर्क देखते हैं, all this work is being done in cottages, in homes. गरीब लोगों के घरों में वो काम हो रहा है, औरतें बैठी हैं तमाम दिन भर काम कर रही हैं और बना रही हैं चीजें, and they don't get much value for it, but the middleman or the businessman, he gets the profit. But how to take this profit to those people, how to make them develop, how to give them benefit of better technology, how to link them with the modern market, that is all the concept which is required. And there is tremendous potential. उन लोगों में इच्छा शक्ति भी है बहुत. I mean, आप तो जानते हैं लज्जत पापड़ की कहानी जो है सबसे मशहूर कहानी है. There was a self-help group and then a woman from the village who started that concept, और आज इसका उसका इतना जबरदस्त नाम हो गया. All over, we are all buying it and we eat it. So this is so much possibility is there. Business potential is there, latent in the villages. I will not take too much of your time. I would also, along with you, want to listen to Mr. Hiralal, Dr. Hiralal. Let us listen to him and let us see. Topic interesting लगेगी, आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं. अच्छा रहेगा, डिबेट हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए. So I welcome Dr. Hiralal and I would now request him to make his presentation. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful remarks. The opening remarks. जितना सर मैं आपके शब्दों से इतने सारगर्भित शब्दों से समझ पाया कि डॉक्टर हीरालाल साहब
जैसे धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और धरती के लिए काम करना चाहते हैं. So now I would like to take it over to the lady who will be in conversation with Dr. Hiralal ji. I'll speak few words about Ms. Aparna Mishra. Ms. Aparna Mishra is an established entrepreneur, a multi-dimensional personal, a Lucknowite, qualified with more than 8 years experience in corporates, 18 years in corporates and 11 years with entrepreneurs. Excellent communicator she is and great networker also. She is a fellow from ISB Hyderabad, which really gave her the insight to work for entrepreneurs. During last few years of the uphill task of entrepreneurship, she had many laurels. Aparna, a mentor with Startup India and with many platforms. She is involved with many social and networking organizations also. She is also founder of a global monthly digital magazine, Woman Shine, well known. One book, rather I should say, on happiness quotient has been published with 20 short stories by 20 amazing women. So these were the few words about Ms. Aparna Mishra. Now I'll request Ms. Aparna Mishra to take it forward and to be in conversation with Dr. Hiralal ji, जिनको सुनने के लिए हम सब बहुत उत्सुक और उत्साहित हैं. Over to Aparna ji. Thank you so much, sir. Thank you so much, LMA Alok sir, for giving me this opportunity to talk about the amazing work which Hiralal sir has done. I'm really honored to be present here today and discussing with him right now, or virtually. Good evening, sir. Hiralal sir, good evening. Namaskar. सर आपने तो गांव की पहचान बिल्कुल बदलने का बीड़ा उठा लिया है कि हमें गांव बदलने ही है बिल्कुल. तो सर स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने बनाए थे आपके लिए, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रियलाइजिंग बिजनेस पोटेंशियल इन विलेजेस. तो सर गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गांव में ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ एनजीओज भी काम कर रहे हैं. तो आपने कैसे असेस किया कि ये जरूरत है गांव में इस चीज की, और ये आपका ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? क्या आपने कैसे असेसमेंट किया इसका कि आपको लगे कि हाँ, अगर हम यहाँ पे कुछ चीज करते हैं तो कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं गांव में? देखिए, ऐसा है कि मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं सबका स्वागत करूंगा कि हम लोग एक अच्छे फोरम पे इकट्ठे हुए हैं. और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं भी इसका एक लाइफ मेंबर हूं. जब आलोक सर चीफ सेक्रेटरी थे तभी हम इसका लाइफ मेंबर बने थे. तो मेरे लिए एक अच्छी बात यह भी है कि हम एक ऐसे फोरम पे बात कर रहे हैं जहाँ का मैं खुद परिवार हूँ, पारिवारिक सदस्य हूँ. देखिए, जो बात आप ये कह रही हैं, इसमें हम कोई चमत्कार या कोई जादू नहीं कर रहे हैं जैसा लोग डींग मारते हैं. ठीक है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है. कहते हैं ना, गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की हर जगह रहती है. तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है या जो है उसमें जो परफॉर्मेंस ना आने के कारण है, उस पोर्शन को हम लोग मॉडल गांव से सप्लीमेंट कर रहे हैं. मीनिंग देयर बाय कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसे हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, एक बात. दूसरी बात यह है कि वी आर डूइंग सेम थिंग डिफरेंटली. दैट इज व्हाट द इनोवेशन. क्या किसी चीज को जब हम उसको एक डिफरेंट तरीके से करते हैं कि उसमें टाइम का बचत हो जाए, कास्ट डाउन हो जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड. तो वी आर डूइंग सेम थिंग डिफरेंटली एंड वी आर सप्लीमेंटिंग द schemes to improve the performance outcome. Right, sir. दूसरी बात आपका क्वेश्चन का एक पार्ट ये है कि ये हमें सपना कहाँ से आया या हमारे दिमाग में आइडिया कहाँ से आया. तो ये प्रयोग हमने बांदा में किया था और हमने वहाँ 20-22 प्रयोग किए. एक साल में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, 18-18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी. जेल पे कोई डीएम नहीं काम करता है. आई वाज द ओनली डीएम ने जेल को नंबर 1 कर दिया 72 में. 72 जेल यूपी में नंबर 1 किया. बच्चों के लिए जैसे एक पिक्चर है, एक दिन का सीएम, एक दिन का हम अधिकारी बनाते थे, एक दिन उसे डीएम बनाते थे, लाइकवाइज. और अरहर सम्मेलन किया. तो ये सब चीजों को जो हमें 20-22 रिजल्ट मिले, उसी को हमने जोड़ करके जो हमने बांदा में किया उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में अब हम देश प्रदेश विदेश सब जगह लागू कर रहे हैं. और महात्मा गांधी जी का जो सपना है और जो पूरा एक स्कीम चलाए थे हमारे
मिसाइल मैन साहब एक्स प्रेसिडेंट, जी। उसी को रियलाइज करने का हमारा प्रयास है और बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट मिले। तो सर हम ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल गांव की नींव थी वो बांदा में पड़ी। यस, ओके, बिल्कुल सही बात। मतलब एक स्टार्टअप नजरिए से देखे तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था आपके लिए, जो बांदा में आपने प्रोजेक्ट इसको किया। बिल्कुल। तो सर इसको आपने जनवरी में शुरू किया है, जनवरी 2021 में इसी साल, और आज अगस्त हो गया, करीब 8 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो सर इसमें आपको स्टार्टिंग में काफी कुछ दिक्कतें आई होंगी, कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो किस तरह से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया इसको करने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा मॉडल है ये टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड, टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड और अमेजिंग रिजल्ट एक्वायर्ड है बांदा के 50 डिग्री टेम्परेचर में। ये तपा तपाया मॉडल है, ठीक है। तो जब मैं बांदा में था तो ऐसा नहीं है जितना 75 जिले के लोगों को पैसा मिलता था डीएम को, उतने हमें भी मिलता था। तो हमने बिना एक्स्ट्रा पैसा लिए हमने कैसे 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, हमने कैसे जेल को नंबर 1 किया। हमने जो 20-22 प्रयोग किए, हमने किसी से 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो जब आपको पता है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा और आपको ये भी पता है कि हमें पास होना है और बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, तो ये जो गैप है इसको हम 3 ट्रिक अप्लाई करते हैं। हमारी एक फिलॉसफी है, क्या हम किसी भी काम में नो कास्ट और लो कास्ट एक्टिविटी करते हैं। पहला मेरा ट्रिक है, क्या हम जमीन पे बैठ करके पानी की बात करेंगे तो जो टेंट में पैसा लगता है, जो माइक में पैसा लगता है, जो फूलमाला में पैसा लगता है, जो दिखावा और नाटक में पैसा लगता है, वो बच गया। तो मेरा लो कास्ट नो कास्ट वाला फार्मूला एक बात। दूसरी बात यह है कि जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है प्रधान के पास, गांव वाले के पास, जिला, उनको मिला करके हम कन्वर्ट करके अपना काम देहाती और देसी तरीके से चलाते हैं, क्योंकि हम गांव वाले भाषा में काम करते हैं। और मेरा तीसरा ट्रिक और टेक्निक्स है वो ये है कि हम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका हम इक्वली प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करते हैं सबको। मान लीजिए 5 पार्टिसिपेंट है, पोलियो की दवाई पिलाना है, तो ये थोड़ी कह देंगे मेडिकल विभाग का काम है। बेसिक शिक्षा, रेवेन्यू, पुलिस, रिप्रेजेंट, सब पूरा ताकत लगा के, तो प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन जिससे सभी लोग ओनरशिप लें। हमारे ये 3 मंत्र हैं और हमारे 3 मंत्र से हमें हमेशा सफलता मिलता है। मैं कोई काम करता हूँ ये मेरी आदत में है। मतलब जैसे वो सुभाष पालेकर जी कहते हैं कि वो 0 बजट का खेती कराते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने वहीं से ये नकल लिया है, मैं 0 बजट गवर्नेंस करता हूँ। ओके सर। सर इसी के साथ हम एक और बात बताएंगे कि लाइक अभी 10 अगस्त को आपका चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने आपके साथ एक MOU किया है मॉडल गांव के साथ साथ। तो उसमें यह है कि जो भी 26 विलेजेस को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें एग्री स्टार्टअप्स और एग्री टूरिज्म पे काम होगा। तो सर उसकी क्या टाइमलाइंस हैं और क्या प्लानिंग रहेगी इन 26 विलेजेस? कुछ प्लान ऑफ एक्शन अभी कुछ बताएंगे उसके बारे में सर? हाँ, देखिए ऐसा है कि सरकार की एक स्कीम है कि जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक एरिया दिया जाता है, जिले दिए जाते हैं, और हर जिले में KVK का किसान विकास केंद्र होता है। वहां पे एक हेड होता है, हेड साइंटिस्ट, 6 साइंटिस्ट होते हैं, कुल 9 कर्मचारी होते हैं। तो हर जिले के 2 गांवों को KVK ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है कि उसको वो डेवलप्ड करेगा। ठीक, तो जो जैसे अभी हमने आपको शुरुआती दौर में बताया, हम कोई जादूगरी, लोग डिंग मारते हैं हमें, हमारा कोई जादूगरी नहीं है। वी आर सप्लीमेंटिंग वन थिंग एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग डिफरेंटली। बस यही हमारे 2 मंत्र है मॉडल में। तो देखिए ऐसा है कि मैंने अभी तक जितना स्टडी किया है, फॉर एग्जाम्पल अभी स्मार्ट विलेज मूवमेंट का कॉन्सेप्ट चलाते हैं डॉक्टर अनिल शाह। ये गुजरात के रहने वाले हैं, 40 साल से कैलिफोर्निया में हैं, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसरों के साथ ये प्रोग्राम चलाते हैं। कहाँ? गुजरात, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उनको हम लोग उनसे भी हमारा उनसे भी MOU होने जा रहा। देखिए सबकी दिक्कत ये कही है क्या, जो कि सब लोग सप्लाई करते हैं विदाउट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल
गांव वाला कभी आपसे आके कहा कि हम धनी होना चाहते हैं? गांव वाले ने कभी धरना प्रदर्शन किया कि हमारे गांव का विकास करो? तो जब उसकी डिमांड ही नहीं है और आप कह रहे हो नहीं हम आपको धनी बना देंगे, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया। जी। तो मतलब क्या है, हम लोग बिना डिमांड के सप्लाई कर रहे हैं डेवलपमेंट का। मैं मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की भाषा में बात कर रहा हूँ। तो जब सप्लाई नहीं, डिमांड नहीं, आप सप्लाई किए जा रहे हो, तो विकास नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा, यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत जीरो रहेगा या कम होगा। तो ये जो गैप है, हम डिमांड ऑफ डेवलपमेंट पैदा करते हैं, हम गांव में सप्लाई क्रिएट करते हैं इसका मॉडल गांव के माध्यम से। तो डिमांड को मिल गया, सप्लाई तैयार कर दिया, मैच हो गया और परफेक्ट रिजल्ट आता है। तो यही काम हम, उनके 13 जिले हैं, 13 केबी के हैं, 2-2 गांव लिए हैं, हम लोगों ने उनसे एमओयू साइन किया है ऑलरेडी। उनके गांव में जो काम हो रहा है, जैसे उन्होंने एक गांव अनूपपुर लिया है, जब हम लोग उसकी एनालिसिस किए, अब यहाँ से CSR से डिफरेंट तरीके से वो विद्यालय बना रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो प्राइमरी में पढ़ने ही नहीं जाएगा, वो कॉन्वेंट में 10,000 वाला टीचर से पढ़ाएगा, 1 लाख वाले प्राइमरी से नहीं पढ़ाएगा। तो पहले हमें उसका माइंड सेट चेंज करना है क्या, कि पहले हमें सप्लाई क्रिएट करनी है, डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करना है। तो हम हर जगह, हमारा मॉडल गांव एक ऐसे मर्ज की दवा है जहां की डेवलपमेंटल एक्टिविटी में ये कमी हर जगह है, चाहे वो अमेरिका से बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे कृषि विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, और चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। इसी कमी को मैंने बांदा में पूरा मतलब दूर किया। हम एसी कमरे में बैठ के गवर्नेंस नहीं करते हैं, हम जनता के बीच में घुस के, जनता के बीच में जाके, जनता का टोपी पहन के, जनता की भाषा में और जनता की दरी पे और जनता के कुल्हड़ में चाय पी करके जनता के दिल दिमाग में घुस जाते हैं, और जब उनका कंट्रोल हमारे पास आ जाता है तो वो हमारी बात मानते हैं। तो हमारा टोटल पब्लिक सेंट्रिक, पब्लिक पार्टिसिपेटेड मॉडल है। जी सर। सर ये जो 26 विलेजेस हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही हैं कि हम और भी भारत के किसी और भी अन्य उसमें करेंगे? नहीं, वो तो चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी देखिए, हर एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को उसके नियर बाई को दिया जाता है, भाई आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लैब हैं, तो उनको लैंड चाहिए ना भाई, उन्होंने जो बीज या जो भी प्रयोग करना खेती का कैसे करेंगे, तो केबी के उनका एक माध्यम बनता है जिले में लैंड तक पहुंचने का। तो हम लोगों की शुरुआत हो गई है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मतलब अब लैब और लैंड इकट्ठा हो गया, क्या हम लैंड हैं और वो लैब हैं। अमेरिका क्यों सफल है? क्योंकि वो पढ़ाई के साथ कढ़ाई, मतलब पढ़ाई भी करता है और प्रैक्टिस भी करता है। हमारे यहाँ जब तक हम पढ़ेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। जिसका ये जो, तो ये हमारा जो मॉडल है, पढ़ाई और कढ़ाई, पढ़ाई और प्रैक्टिस, लैब और लैंड का एक बहुत बढ़िया मॉडल बनने जा रहा है। तो सर, और हमारा नरेंद्र देव से भी बात हो गई है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से, यहाँ वाला प्रयोग हम लोग वहां भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ओके सर। तो सर इसका मतलब हमें काफी एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स बहुत मिलेंगे, इसका मतलब? बिल्कुल 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 सर। और ये बताइए, जैसे अभी आपका अभी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन मिस्टर राजीव कुमार ने भी काफी आपको कॉम्प्लीमेंट किया आपके इस काम के लिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, यू आर टर्निंग बैकवर्ड रूरल एरिया इनटू मॉडल विलेजेस थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो सब कुछ इसके बारे में बताइए, जो नीति आयोग ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है। देखिए, नीति आयोग के साहब ने कॉम्प्लीमेंट किया, मैं उन्हें धन्यवाद बोलूंगा। ना मेरा उनसे जान, ना मेरी जान है, ना पहचान है, ना मेरी मुलाकात है। उन्होंने इसको क्यों कर दिया ये तो वही बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे राजू कुमार सर का जो लिखने की स्टाइल थी, वो गागर में सागर था। जो उन्होंने 4 लाइन में लिखी थी, जिसने भी, तो मुझे ये लगता है कि ये जो काम है उन्हें पसंद आया, और इसी वजह से उन्होंने इसको लिखा। और जब ये उन्होंने लिख दिया तो ही इज नॉट ए नेशनल पर्सन, ही इज ए इंटरनेशनल पर्सन, द बिगेस्ट थिंक टैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद तो फिर ये काफी फैला। और नॉट ओनली राजीव कुमार सर, एक सी रवि साहब हैं, वो जो है एक्स मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, हमें पता नहीं, और वो 3 भाजपा के मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र के प्रभारी है। बिग
पॉलिटिशियन, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा। अब मैं तो कभी कर्नाटका गया नहीं, मेरा कर्नाटका से कोई लिंक नहीं। मैंने ये महसूस किया कि अच्छी चीज अच्छी होती है, सत्यमेव जयते है, ठीक है। तो उन्हें भी बात अच्छी लगी, जमी, इसलिए वो हमारा कोई मतलब नहीं, उन्हें बहुत बढ़िया उन्होंने भी लिखा था, ट्वीट किया था। सर होता क्या है ना, जब आप कोई अच्छा काम करें और दिल से करें, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल अपना दिमाग और दिल सब लगा दे उस काम पे, तो जरूर सर उसको लोग पहचानते हैं, उसको जरूर अप्रिशिएट करते हैं। आप चाहे वहां जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन आजकल थैंक्स टू इंटरनेट सर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। तो आपकी जो जो आपने काम किया, अगर हम बैठे अभी देखने तो सारा कुछ, पूरी आपकी अचीवमेंट सारे आ जाते हैं सर। तो आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं सर। सर इसी में जैसे आपके मॉडल गांव में आपके आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने भी सपोर्ट किया है इसको, तो सर इस तरह से वो किस तरह का सपोर्ट एक्सटेंड करा है उन्होंने मॉडल गांव में? ये भी अपने आप में एक कहानी है और इनोवेशन है। बताइए सर। एक्चुअली जो है, हम एक मुनीष गंगवार साहब है जो रिटायर्ड सीजीएम है नाबार्ड के। जी ही इज वेरी स्टूडियस, वेरी लर्नेड। तो मैं पिछले 5 साल से, वो मेरे एक तरह से गुरु हैं रूरल डेवलपमेंट के, मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूँ, पढ़ते बहुत है। जी तो हमने उन्हें बांदा में भी 3-4 प्रोग्राम में बुलाया था। तो जब मेरा बांदा से ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने 2 पेज का एक बढ़िया हमारा सिनॉप्सिस बनाई, बिकॉज़ ही इज ए लर्नेड पर्सन, ही नो हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट्स या उन्होंने क्रम संख्या, हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या इंडिकेटर थे और क्या क्या उसके आउटकम आए। तो जब वो आउटकम आया तो कहीं ने तो बड़ा गजब आ गया। हमने कहा क्या हो गया? कहीं ना आपने डेमोक्रेसी को 11% मजबूत कर दिया यूपी में, पूरे यूपी में हमारा परसेंटेज हाईएस्ट था। आपने पूरे घर, यहाँ कोई एक बाल्टी एक लोटा पानी नहीं बचा सकता है, आपने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पूरे बाधक पानी को ऊपर खींच लाए। लाइकवाइज उन्होंने जब हम लोगों का एक बाधा के 470 गांवों को हम लोगों ने एक तरह से डेवलपमेंट की धारा में बढ़ाए, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है, एवरेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी डेटा है ऑनलाइन, बढ़ा है। तो हमने इसको, जब उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा देखें आपकी बात में कितना दम है। तो मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। जैसे सोशल मीडिया पे डाला तो मैं धन्यवाद दूंगा श्री सौरभ सिंह जो आईसीसीआई फाउंडेशन के इंडिया हेड है। ही इज अमेजिंग पर्सन, मैं बता नहीं सकता। आज लोग कहते हैं कि अच्छे आदमी नहीं है इस दुनिया में, वो अच्छे आदमी। उन्होंने पहली बार वो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि साहब मैं आपको काफी सालों से फॉलो करता हूँ, और ये जो आपने काम किया है ये सही है, और इसको बांदा में ही कहो, इसका लाभ पूरे प्रदेश देश में मिलना चाहिए। हमने इस बात को मुनीष जी को बताया। हमने कहा मुनीष जी, सौरभ जी ने कहा है और फर्स्ट टाइम मुझसे वो बात किए हैं, तो आप जरा बात करिए क्या कह रहे हैं। मुनीष जी की उनकी बात हुई और उन्होंने कहा इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पूरे प्रदेश में लागू करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर वहीं से प्लान बन गया। तो इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। रीजन बीइंग ये पूरी एक्शन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन माय एक्टिविटी इन बांदा, वो ऑनरेरी इसके प्रेसिडेंट है। और इसमें सौरभ लाल हमारे बहुत ही अच्छे इंसान है सब, और बहुत ही लर्नेड आदमी है, बहुत रेयर पर्सनालिटी मिलेंगे ऐसे। तो वो इसके सीईओ हैं। ये एक सौभाग्य इस मॉडल गांव का ये भी है क्या, इसमें सब अच्छे अच्छे मिलते जा रहे हैं। तो सौरभ लाल है, 3 बच्चे हैं, और ये एक छोटी सी ऑफिस है, और ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है। और इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आईसीसीआई देता है। तो मैं आईसीसीआई को धन्यवाद दूंगा कि ना उन्होंने कोई कागज मांगा, ना क्रेडेंशियल मांगा, ना कुछ मांगा। एक अच्छे काज को लेकर के वो उन्होंने तुरंत कहा हम आपके साथ हैं, इसको लागू किया जाए। तो ये है कहानी इसकी। सर इसलिए नहीं मांगा ना क्योंकि वो आपको इतने टाइम से लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे होंगे, और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे थे बांदा में, आपने स्टार्टअप सबमिट करी, आपने वाटर कंजर्वेशन, क्या नहीं किया आपने बांदा में। तो सर ये सभी लोग फॉलो कर रहे हैं आपके वर्क को, और इतने फॉलोअर्स हैं आपके, तो कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए फौरन रेडी रहेगा सर इसमें। तो अब सर ये बताइए कि मॉडल गांव का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं 1 मिनट कि अभी मैंने एक बात कही थी कि आपको भूख लगी नहीं है, आपका पेट, आपको भूख ही नहीं है, वो हम कहें ले ये ताज, चलो ताज होटल में खाना खिला लाए, और वहाँ 136 तरह के आइटम है, आपको पसंद, बेकार है आपके लिए 136 तरह। और अगर आपको भूख है तो सूखी रोटी और प्याज और चटनी भी बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। तो गांव वालों से अगर आप पता करिए कि पूछो से विकास क्या है,
तो उसे विकास की जानकारी नहीं। आप उससे पूछिए विकास के मुद्दे कितने हैं, तो कहेगा नाली खड़ंजा वो साहब हैंडपंप इंडिया वाला लगा दो और स्कूल बना दो। ये मुद्दे नहीं है, टोटल 25 मुद्दे हैं, वो नहीं पता। एंड देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट। किसी के मन में विकास की कोई न सपना है, न ड्रीम है, ना वो चाहता। तो ना विकास पता, ना विकास का मुद्दा पता, ना डिमांड है, तो ये विकास कैसे होगा? तो हमारा विलेज मैनिफेस्टो इन तीनों चीजों की दवाई है। विलेज मैनिफेस्टो इन तीनों चीजों की समस्याओं का समाधान है, ठीक है। और मॉडल गांव की साइट पे जा करके कोई भी अपना फोटो लगा करके विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन बना सकता है। और हमारा मकसद ये है कि गांव में, हमारा गांव का मतलब है प्रधान के एरिया वाला गांव। तो प्रधान के एरिया में जितने लोग हैं, मान लीजिए 5000 की आबादी है सपोज करिए, और 3000 के पास अगर मोबाइल है, तो 3000 लोग मोबाइल मैनिफेस्टो अपना फोटो वाला बनाएंगे। सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को दिखाएंगे, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत है, और खूबसूरत चीज सभी को दिखना चाहिए। पड़ोसी को दिखाएंगे, मोहल्ले को दिखाएंगे, और जब दिखाएंगे तो चर्चा बनेगी। तो हमारा जो मकसद है, सबको विकास पता लग जाए, सबको 25 पॉइंट पता लग जाए, और सबके पेट में दर्द पैदा हो जाए। किस चीज का? विकास का। और एक चुनाव का माहौल क्रिएट करने के लिए हमने वो एक पेजर ही बनाया है। और ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है, ये ठीक है, ये वाला, ये देखिए, ये है। जी सर। तो ये जो है, ये विलेज मैनिफेस्टो से हम एक माहौल बनाते हैं, और यही से वो जो सप्लाई वाला पोर्शन गैप है, यही से फुलफिल हो जाता है। ओके ओके ओके। तो अगर कोई मॉडल गांव के साथ जुड़ना चाहे, बिकॉज आज सब आपको देख रहे हैं, आपके अच्छे काम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे मॉडल गांव, तो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है वो सर? देखिए, मॉडल गांव के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास, मैं आपको इसे दिखा दूं, देखो ये हमने अपनी पीपीटी में लिखा भी है, ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है। इसमें क्या है, आप मॉडल गांव से हमारे मॉडल गांव पे रजिस्टर कर लीजिए, ऑनलाइन अपना घोषणा पत्र बना लीजिए। दूसरा माध्यम है मॉडल गांव india.gmail.com से हमें मेल लिखिए। हमारे सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, सब पे हम सोशल मीडिया से कनेक्ट करिए। हमारे मोबाइल नंबर हैं तो उस पर आप हमसे बात करिए। और तीसरा है, जैसे मान लीजिए आपको नेतागिरी में मजा आता है, तो आप विलेज मैनिफेस्टो पे काम करिए। आप बनिया टाइप के हैं, बनिया मतलब बनिए, बिगड़िए मत। क्या बनिया मतलब? हम रामनगर में एसडीएम थे, तो एक अग्रवाल साहब थे, मुझे आज भी उनको, वीरेंद्र अग्रवाल, कहीं साहब बनिया का मतलब जानते हो? कहीं हमने कहा बताइए। कहीं बनिए का मतलब बनिए, तो फिर कहीं इसका समझने के लिए बिगड़िए मत। तो जो मतलब बनिए टाइप के जो बनना चाहते हैं, उनको जो है वो हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हम चलाते हैं, उस पर काम करें। और जो काम को हटके करता है, वो हमारे विलेज मैनिफेस्टो पे जो है चेंज मेकर पे ज्वाइन कर ले। तो हमने 6 तरीके से, हमसे 6 तरीके से जुड़ सकता है। मॉडल गांव की ऑफिस में आकर के फिजिकल, रोज प्रधान पर डे ऑफिस पड़ी, मतलब लोग आ रहे हैं, अब माहौल बन गया। आते हैं हमारे बच्चे, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें कुल्हड़ में पानी पिलाते हैं, चना और गुड़, ऑर्गेनिक चना खिलाते हैं, ऑर्गेनिक गुड़ खिलाते हैं, उनको सब समझाते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये माध्यम है जुड़ने के। जैसे सर आपने बताया कि जो जुड़ना चाहता है वो अपना मैनिफेस्टो बनाए, तो अपना मैनिफेस्टो कैसे बनाए? मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसी में से हम कुछ सेलेक्ट करें कि हम इसमें अपने को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस तरह से उस पे? देखिए हमारा, देखिए सब एक्चुअली ये काम करने में एक दिक्कत है गवर्नेंस में। क्या, हम लोग हमेशा हार्डवेयर पे काम करते हैं, सीधा हार्डवेयर पे पहुंच जाते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते। तो हमारा मॉडल गांव है कि सॉफ्टवेयर, हम कहते थे बांदा में कि हम लोगों के दिल, दिमाग, सोच, तन, मन, धन में कुआं तालाब खोदना चाहते हैं। फिजिकल खुदे, जमीन पे खुदे ना खुदे मेरे लिए माने नहीं लगता, लेकिन लोगों के दिल, दिमाग, तन, मन, धन, सोच में कुआं तालाब नदी खोदना चाहता। इसी तरह से एक बार आदमी के दिल दिमाग में कुआं तालाब नदी बस जाएगा तो फिजिकल तो खोदेगा ही। तो इसी तरह से हम मॉडल गांव लोगों के तन, मन, धन, दिल, दिमाग में पैदा करना चाहते हैं। मैं मॉडल गांव पहले लोगों के दिल दिमाग में बनाना चाहता हूँ। एक बार दिल दिमाग में बन जाएगा तो फिजिकल तो बनेगा ही। अभी क्या है, लोग फिजिकल बनाते हैं और मेंटल नहीं बनाते हैं।
हमें बांधा में सफलता मेंटल बनाने से मिला, मेंटल बनाए तो फिजिकल बना। हम रिवर्स चल रहे हैं, फिजिकल टू जो मेंटल चल रहा है, हम करें नहीं मेंटल टू फिजिकल चल। तो जब लोग 25 पॉइंट को रट लेंगे और हम वहां 25 प्रभारी बनाएंगे और हर प्रभारी अपने अपने गांव में अपना, जैसे मान लीजिए हमें 25 चेंज मेकर मिल गए अच्छे लोग, जी सफाई, अभी क्या कॉन्सेप्ट है सफाई का, गांव के लोग मिलके खूब गंदगी करें, सफाई कर्मचारी सफाई करे, इससे सफाई नहीं होगा। हमारा मॉडल ये है कि डेवलप्ड कंट्री की तरह हम गांव के हर व्यक्ति को ये समझाएंगे कि ना हम घर में गंदगी करेंगे ना बाहर करेंगे, तो गांव साफ सुथरा रहेगा। डेवलप्ड कंट्री इसी वजह से साफ है, सफाई करने से सफाई नहीं होगी। तो हमारा ये जो 25 मुद्दा है, सफाई, दवाई, कमाई, इन सारे मुद्दों पे हम बिना पैसे, नो कास्ट लो कास्ट पे ही हमारी फिलॉसफी है, अदरवाइज पैसा वैसा नहीं मिलेगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, गांव को गांव रहने दो, गांव को शहर मत बनाओ। क्या गांव को शहर मत बनाइए, गांव की जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रहने दीजिए, उसी को समृद्ध करिए, उसी को मजबूत करिए, उसी को आगे ले जाइए। सर जैसे आपने ये जनवरी में शुरू किया और इस समय काफी कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया होगा जो आपके विलेजेस होंगे, तो आज से अगर हम देखें कि हम 5 साल में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, मतलब क्या हमारे कुछ स्टार्टअप्स हो चुके होंगे, चाहे हमें कुछ चीजें लोगों की सोच बदल गई होगी, क्या हम सोच रहे हैं कि 5 साल में क्या हो जाएगा? देखिए, मॉडल गांव बनने के लिए बहुत समय, लंबा समय चाहिए। अभी हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो कोई 25 साल में लगा है, कुछ 10 साल में लगे हैं। जैसे पुंसारी एक गांव है, हिमांशु पटेल उसके जो हैं वो हैं सरपंच रहे गुजरात के, वो 10 साल में उन्होंने अपने गांव को मॉडल गांव बना लिया, ठीक है। लेकिन गुजरात में तो माइंड सेट वैसे ही बनिए वाला है, बिगड़िए वाला नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंड सेट की। तो देखिए, मॉडल गांव बनाने के लिए 10 साल मिनिमम लगेंगे, जो पुंसारी के उदाहरण से है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कई फ्रंट पे काम करना शुरू किया हुआ, आपको सरप्राइज होगा कि इन विषम परिस्थितियों में यूपी में करीब 850 एफपीओ हैं। सारे एफपीओ हम लोगों के लूप में हैं। उनका लिस्ट हमने एग्रीकल्चर विभाग से उठाया, पीएस ओझा साहब है 200, उनसे लिया। ऐसे जहां जहां थोक एफपीओ के थोक व्यापारी टाइप के लोग हैं जो उन पर काम कर रहे हैं, हमने वहां से सूची ली और हम लोग कंटिन्यूअस उनके टच में हैं। अगर एफपीओ चल रहा है तो हम उनको नॉलेज देके दौड़ा रहे हैं, अगर रुका है तो चला रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, इस पर से जोड़ रहे हैं, उनकी इनकम को, उनके गवर्नेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 800 एफपीओ, आप किसी एफपीओ से यूपी पूछ लो, मॉडल गांव को तो जानता है, तो शायद अपने पिताजी का नाम बताने में 2 मिनट देर करेगा, लेकिन इसका नाम बता देगा, क्योंकि हमारे यहाँ रोज फोन जाता, हम 3 बार बात कर चुके। और हम कहते हैं हम तुम्हें धनी बना के ही मानेंगे, हम तुम्हें गरीब नहीं रहने देंगे एफपीओ साहब, ठीक। एक बात। दूसरी बात, जो अभी हम रजिस्ट्रेशन की बात, हमारे पास 2955, अभी हमने डाटा लिया आते 2955 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। ओके। यस। और 2793 विलेज मैनिफेस्टो बन चुके हैं। अगर आप विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे हमारे साइट से तो तुरंत वो रजिस्टर हो जाएगा, उसकी एक कॉपी हमें भी मिल जाती है। ओके ओके, ठीक है। तो और हमारा विलेज मैनिफेस्टो 15 स्टेट में चालू हो गया। 15 में? यस, हाँ 15 स्टेट में। और ये सब ऑनलाइन रिकॉर्ड है, क्योंकि हम टोटल टेक्नोलॉजी से ट्रैक कर रहे हैं। और यूपी के 75 के 75 जिलों में हमारे काम शुरू हो गए हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और हमने जनवरी में शुरू किया और खिचड़ी के दिन ऑफिस इनाग्रल किए। उसके बाद लगातार विषम परिस्थितियों से हम सभी लोग गुजर रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी हम लोग इसकी गति को बनाए हुए हैं और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का सपना है और इसको जमीन पे लाना हम सबकी मजबूरी है और जरूरत है। बिल्कुल सर, रुकने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर जो रुक गया तो फिर वही रुक गया, फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सर, अगर इतने कम टाइम में आपने 75 विलेजेस प्लस इतनी स्टेट्स में कर लिया, तो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल सर। आपके जज्बे को सलाम एंड रियली सच अ गुड वर्क। बट सर ये बताइए, आप इतना बिजी रहते हैं, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपको अलग गवर्नमेंट असाइनमेंट्स हैं और फिर आप मॉडल गांव पे भी काम कर रहे हैं, तो कैसे आपको टाइम मिल जा रहा है करने का?
देखिए यही तो, देखिए इसी को कहते हैं कि हार्वर्ड में लोग पढ़ के मैनेजमेंट सीखते हैं और हम धूप में मैनेजमेंट सीखते हैं, ठीक है। तो मैं मॉडल गांव को जो मेरा लेजर, मतलब जैसे लोग क्या होता है सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो सैटरडे संडे को मैं मॉडल गांव को समय देता हूँ। कोई किताब लिखता है सैटरडे संडे, कोई पिक्चर देखता है, कोई क्लब जाता है, तो मेरा क्लब, मेरा किताब, मेरा पिक्चर इस समय सैटरडे संडे को मॉडल गांव है। तो मुझे उसमें मतलब मेरा पैशन है, सैटरडे संडे मेरा जो छुट्टी का समय है वो मैं मॉडल गांव को देता हूँ। और नौकरी टाइम में मैं निष्ठा से अपनी नौकरी करता हूँ। तो मैं इसको ऐसे मैनेज करता हूँ। वन थिंग, सेकंड थिंग, जो अभी आप बात कह रही हैं कि आप पढ़ाई मत छोड़िए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहेगी। क्या अब हम इस समय डीलीट करने जा रहे हैं और मेरा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। तो आजकल हम कम्युनिकेशन खुद पढ़ रहे हैं, समझते हैं, रिसर्च कर। तो जब आप पढ़ेंगे और पढ़ना नहीं छोड़ेंगे तो आपका एक तो नॉलेज डाइवर्सिफाई होगा, बिल्कुल ठीक सर। है। मुझ साइकिल, मैंने एक साइकिल का प्रोजेक्ट बनाया। ऐसे हम रोज नए नए प्रोजेक्ट एग्री टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। जी जी। एग्री टूरिज्म पे देखा सब साइलेंट है। जब मैं कल्चर में था तो एग्री टूरिज्म की पॉलिसी बन रही थी। आई वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कल्चर एज ए डायरेक्टर कल्चर, आई वाज देयर। हम ही ने वहां कहा भैया आप लोग इसमें एग्रीकल्चर टूरिज्म डालिए। वही चार लाइन जुड़ी, आज उसी के सहारे हम एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एग्री टूरिज्म यहाँ यूपी में 5-6 लोग, 10 लोग, 20 लोग कर रहे हैं। उनको यूनाइट करना है, उनको हमें मदद करना है। और यूपी की इकोनॉमी एग्री इकोनॉमी है, चाहे उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बढ़ाइए, चाहे एग्री टूरिज्म से बढ़ाइए, बढ़ेगी एग्री से। तो ये एग्री टूरिज्म की भी चीजों को एक नया कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी। अभी मैं अभी बात कर रहा था किसी एक्सपर्ट से, महाराष्ट्र ने एग्री टूरिज्म की अलग से पॉलिसी ले आया है, बिल अकेले। तो कहने का मतलब एग्री में पोटेंशियल बहुत है और इसको करने की जरूरत है। सब बहुत पोटेंशियल है, तभी तो यूपी में काफी जो कुछ एग्री स्टार्टअप सब स्टार्ट हो रहे हैं निकलना। और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है, इनको अपने इनके इंक्यूबेटर्स हैं जो एग्री स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करते हैं सर। काफी बीच में लखनऊ में भी इस कॉलेजेस में उनके पिचिंग कॉन्टेस्ट हुए थे। तो एग्री स्टार्टअप्स का तो बहुत स्कोप है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स एग्री टूरिज्म, जैसे आपने सही बताया, अगर हम ये दोनों चीजों पे फोकस करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर आपका मॉडल गांव तो है ही साथ में, तो सब कुछ एक साथ ही समझिए मर्ज हो जाएगा चीजों में सर। तो सर ये काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिली। अब थोड़ा सा मैं भी आपको एक शेयर करती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। मैंने जैसी पढ़ रही थी जब स्टडी कर रहे थे, तो एक मेघालय में स्वप्निल टेम्बे हैं सर। वो आईटी खड़गपुर के हैं। उन्होंने कंसल्टिंग में भी जॉब करा। उसके बाद उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन करी 2014 में, और फिर आईएएस ज्वाइन किया 2015 में। तो वो भी बिल्कुल पैशनेट है रूरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। उनका भी एक प्रोजेक्ट है, उसका उन्होंने नाम दिया मॉडल विलेज करके। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह की आपके में अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता है कि हमें कुछ करना है, हमें किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लाना है, तो सर जरूर अगर हम उस पर दिलो दिमाग से लग जाएंगे तो आई एम श्योर वो मंजिल हम जरूर पालेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई नो आज वीकडे है, आपका ऑफिस टाइम है, और उसमें हमने आपका थोड़ा सा समय लिया इंटरव्यू के लिए। तो सर रियली थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच LMA, आलोक सर, प्रधान सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि नॉट ओनली इस तरह के एक IRS अफसर है, रिटायर्ड है, वहाँ के हैं राजस्थान के, वो भी गांव में काम कर रहे हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स पर है, वो भी हमारे से कांटेक्ट किए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग क्या जो कि इस प्रोसेस एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा नहीं ये भी कुछ नई चीज है। और जब पढ़ते हैं तो वो तुरंत हमसे चिपकते हैं। और हमारी आदत है, हम चिपकाने में बहुत माहिर हैं। हम अच्छी चीज मिली नहीं कि हम उससे खुद चिपक जाते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज है। जैसे एक चंद्रा मिश्रा जी हैं, वो बनारस में चला रहे हैं क्या, रोजगार मुक्त बनारस बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम वहाँ गए, देखे, मुझे मिले हम उनसे, हम भी हाँ। मिले उनसे। तो कहने का मतलब इस तरह से जो भी अच्छे लोग हैं जहां भी हैं, हम सभी लोगों को इकट्ठा लाने, हम सभी लोग इसी बहाने एकत्रित हो रहे हैं। अच्छे लोगों का समूह बनेगा तो कम समय में अच्छा रिजल्ट आएगा और सपना साकार होगा।
गांव रिपब्लिक बनेगा, गांव मजबूत होगा, तो इंडिया का जो डेवलप्ड कंट्री बनने का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। सो ये जो आप ऑलरेडी किसी विलेजेस में जो आसपास लखनऊ के आसपास कोई विलेज है जिसमें ये काम चल रहा है आपका मॉडल गांव का कोई? अभी देखिए माल गांव में एक संजोक्ता सिंह चौहान, वो यूके से पढ़ के आई हैं, वह किसी राजघराने की हैं। पूरा ब्लॉक जो है उनके यहाँ हमारे मॉडल गांव के लोग गए थे। अच्छा, ठीक है, अच्छा। और हम आप मेरे साथ चलिए तो अच्छा रहेगा। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनिए 11 तारीख अरे सैटरडे को पूरे ब्लॉक के लोग वहाँ प्रधान इकट्ठा होंगे। एक बार हमारी बैठक हो गई है। परसों 11 तारीख को हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं और सारे प्रधान लोगों से सेकंड राउंड की बात करेंगे और उनके दिल दिमाग, हम देखिए गांव में मॉडल गांव बनाएंगे नहीं, हम यहाँ दिल दिमाग यहाँ मॉडल गांव बनाएंगे। तो हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं, आप भी चलिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रहिए वहाँ, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से चीजें बिल्ड होना शुरू हो गई हैं, कुछ बिल्ड हो गई। जैसे राया एक गांव है एटा में, फिरोजाबाद में, गोरखपुर में, इस तरह से बहुत सारे गांव काम करना शुरू कर दिए। बट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग एट द वेरी आउटसेट, इट रिक्वायर्स 10 years टू बी ए मॉडर्न विलेज। सो अभी ये तो ट्रेलर चल रहा, पिक्चर अभी बाकी है सर, हम वेट करेंगे पिक्चर देखने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। 2 बिंदुओं पे केवल मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। पहला तो ये कि वास्तव में एलएमए गौरवान्वित है, आप जैसे हमारे साथ सदस्य जुड़े हुए हैं, आप जैसे जुड़े हुए हैं। आपने नाम लिया सौरभ लाल जी का, एंड ही आल्सो हैपेंस टू बी आवर मेंबर। रियली नाइस टू सी हिम, टू बी एसोसिएटेड विद यू। सर आपने चर्चा करी एफपीओ की, तो मैं सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स प्रतिभाग इस समय कर रहे हैं, आप सबको अवगत कराऊं कि दिनांक 16 तारीख को आगामी सोमवार को ही एग्री फाइनेंसिंग और एफपीओ पर अवोक इंडिया फाउंडेशन और लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम सर शाम को 4 बजे आयोजित हो रहा है ऑनलाइन। इसमें आप सबका स्वागत है, आप सब ज्वाइन करें। और सर ऑफ कोर्स उल्लेखनीय है कि सर मात्र 8 माह के समय में आपने इतना कुछ कर डाला है मॉडल गांव के संदर्भ में। 75 जिले हो गए, 15 प्रदेश हो गए। मतलब वास्तव में अपर्णा जी जैसे कह रही थी कि आप कैसे इतना समय पा जाते हैं, कैसे कुछ इतना कर डालते हैं। प्रशंसनीय है सर, प्रशंसनीय है वास्तव। और सर हमारा अनुरोध अवश्य होगा कि हम आपके साथ कुछ चर्चा करके, आपसे बात करके एक आउटरीच विजिट एलएमए मेंबर्स की आपके किसी मॉडल गांव के लिए हम अवश्य चलना चाहेंगे सर। आप अनुमति देंगे तो हम सब एलएमए मेंबर्स जो भी जाने के लिए तत्पर होंगे, आपके किसी मॉडल गांव को एक आउटरीच विजिट के रूप में अवश्य प्लान करेंगे सर। मैं सभी प्रतिभागियों से सर पूछना चाहूंगा, यदि कोई प्रश्न हो तो डायरेक्ट डॉक्टर हीरालाल साहब से पूछ सकते हैं। Otherwise, though I don't find any question, but यदि कोई प्रश्न हो तो he is open to respond the questions. Any questions, please? बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, बड़ा जरूरी है। आमंत्रित है क्वेश्चंस। जी डॉक्टर कीर्ति नारायण कुछ कहना चाह रही है जी, बताइए मैडम। जी आप पहले अनम्यूट कर लें डॉक्टर कीर्ति नारायण अपने आप को। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर कीर्ति नारायण। I'll request अगर वो कुछ कहना चाह रही हैं तो अनम्यूट कर लें जी। हो नहीं रहा, अब हुआ मैडम जी, अब हुआ। आप प्रश्न पूछें। मैं ये, आपने कहा कि आप डेवलपमेंट की एक चाह, एक उत्सुकता गांव में पैदा करना करने का मेन वो है तरीका, एक मॉडल गांव को आगे ले जाने का। और उसमें आपने मैनिफेस्टो की भी बात करी और आपने अपना पूरा वो दिखाया जो पोस्टर है, जो कि यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी या नरेंद्र यूनिवर्सिटी किसी के भी थ्रू या अपने आप ही सरकार के थ्रू दिया जाएगा। मैं प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस समाव है कि आप अगर कोई चीज इस तरह के पॉइंट्स दे भी दें तो मोटिवेट कैसे करेंगे कि वो लोग एक्चुअली इसको देखें और उसको पढ़ें। देखिए मैडम ऐसा है कि
हम लोग इसको करने के लिए जो गांव में हमारा, हम क्योंकि मॉडल गांव का पूरे, इसमें मॉडल गांव को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है विलेज मैनिफेस्टो, सेकंड पार्ट है चेंज मेकर, और थर्ड पार्ट है एफपीसी और एफपीओ। ठीक है, तो हम विलेज मैनिफेस्टो से गांव में हल्ला करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं। हंगामा किसका? मॉडल गांव का, विकास का हंगामा खड़ा करते हैं। जैसे वो डमरू बजाता है ना मदारी, और सब लोग उसको देखने आते हैं, ऐसे हम विकास के, गांव के विकास का विलेज मैनिफेस्टो से डमरू की तरह बजाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं, जिससे आदमी अट्रैक्ट हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैडम हर जगह अच्छे लोग होते हैं, गांव में भी अच्छे लोग हैं। अभी क्या है, बुरे लोग आगे और अच्छे लोग बेचारे दुबक के हैं। तो हम अच्छे लोगों को प्लेटफार्म देते हैं कि भाई जो अच्छा काम करे वो हमारे साथ आए। तो गांव के जो अच्छे लोग हैं उनको अभी कोई पूछ नहीं रहा, तो वो बेचारे अपनी इच्छा को दबाए बैठे हैं। ठीक है, तो जो गांव में 2, 4, 6, 10 अच्छे लोग पहले शुरुआती दौर में मिलते हैं, उनको हम पुश करते हैं। ठीक है, और कोई भी काम 1 से 2, 2 से 3 धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फिर वो जो चेंज मेकर 2-3, उनका नाम हमने चेंज मेकर दिया। उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? हम उनको क्या करते हैं कि वो ग्रुप में जो उसी जिले में, जैसे कहीं सब्जी अच्छा हो रहा है, डेयरी अच्छा हो रहा है, कहीं आपका जो है सब्जी अच्छा हो रहा है, वो ग्रुप में वहां जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो दूसरे गांव की डेयरी देखने गया, वो डेयरी से अरबपति है, उन्हीं के गांव में 4 डेयरी है, सबके सब बैठे हुए हैं, तो वो जाते हैं। एग्री टूरिज्म इसका नाम दिया है, मतलब ज्ञान अर्जन मेला। वो जाते हैं, मजा भी लेते हैं, उससे दिन भर सीखते हैं, वो आते हैं और आ करके अपने गांव की डेयरी में लगाएंगे, बढ़ जाएगा। सब्जी वाला सब्जी, ये काम मैंने बांदा में किया। हमने 20 प्रधान रालेगांव सिद्धि भेजे। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का 2 बस भर करके भेजा। सब्जी वो पैदा करती थी महिलाएं, उनको सब्जी की अपडेट नॉलेज देने के लिए इंटरनेशनल वेजिटेबल रिसर्च सेंटर बनारस भेजा। जो महिला घूंघट में रहती थी गांव, उसको हमने वहां भेजा। ऐसे DRI वहां चित्रकूट भेजा, एक्सीलेंस सेंटर हमने जो है कन्नौज भेजा। तो ये जो हमारा मॉडल है मैडम, हमने जो प्रयोग किया जिससे हमें रिजल्ट मिला, तब जब वो सीख के आता है तो पहली बात तो ये होता है ना, उसके मन में ये आया, अच्छा हम तो PhD है या हम तो MBA है, और हमने हमारा डेयरी नहीं चल रहा है, तो कक्षा 8 पास है और करोड़पति है। उनकी अंदर की आत्मा जागती है, और नॉलेज इज पावर। तो हम उन्हें नॉलेज से इंपावर करते हैं, ज्ञान शक्ति है, और वो जो सीख के प्रैक्टिकल नॉलेज आते हैं वही गांव में लागू करते हैं, और धीरे धीरे एक माहौल फिर बिल्डअप हो जाता है। केवल उस जो ये गंदा माहौल है उसको ब्रेक करने की जरूरत है, तो उसको हम विलेज मैनिफेस्टो से ब्रेक करते हैं। फिर गांव वाले लोग, जब माहौल बन जाएगा तो गांव वाले मिलके तीसरा पार्ट में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, चलाएंगे, और गांव के घाटे को मुनाफे में बदलेंगे। हमारा इसमें कहना है गांव वाले को खेती नहीं करना चाहिए, किसी को खेती नहीं करना चाहिए। क्यों? खेती घाटे का सौदा है। तो क्या करना चाहिए? खेती व्यापार करना चाहिए, जैसा कि गुजरात में हमारे किसान लोग करते हैं। तो हम, आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रही हैं, क्योंकि हमने 12, अब आप हमसे पूछ लीजिए कि आपने जेल को कैसे नंबर 1 कर दिया और बिना पैसे के कैसे कर दिया। अभी तक जेल में मैं उनको पढ़ता था, क्या किरण बेदी मैडम को, हमने ये DM कर दिया और 54 नहीं लगा। चैलेंज है, कोई भी जाके देख ले। तो देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। तो दिस इज द स्कीम। Absolutely, absolutely. Very interesting. Very interesting. Absolutely. Wonderful, wonderful. Any other question, please? अन्य कोई प्रतिभागी यदि प्रश्न पूछना चाहे, or I request our senior vice president, Mr. Praveen Kumar Dwivedi, who is with us this evening, for his closing remarks and to propose a formal vote of thanks. Any other question, please? Thank you, Well, I Rajeev. request Mr. Praveen Kumar Dwivedi to kindly for his closing remarks and formal vote of thanks. Over to Mr. Dwivedi. Thank you, Rajiv Pradhan ji. I think it has been a really very interesting. हम लोगों को बहुत ही आज जो जानकारियां शहरों में रह के, वो भी लखनऊ जैसे शहर में रह के जो मिली, जो काम जिस तरह का जमीनी स्तर पर हो रहा है, उससे हम सभी, मुझे लगता है जितने लोग भी जुड़े हैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के हमारे सदस्य, उनको जरूर बहुत ज्यादा इस तरह का ज्ञान अर्जन आज हुआ, और सबकी ये इच्छा हो रही है कि
अभी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अभी डॉक्टर हीरालाल जी से जाकर के ऑफिस में टाइम ले लूं और मिलूं और किस तरह से कुछ ऐसा कर सकूं जमीनी स्तर पे जो वित्तीय समावेश पे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि श्री आलोक रंजन जी हमसे कह रहे थे पहले कि चल रहा है कैसा काम हमारा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और उसका सफलतापूर्वक हो रही हैं, जो कई बार लगता है कि ये हम लोग यहाँ जब बैठे होते हैं कि शायद ये असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करके जो अगर किसी को देखना है तो वो जैसा कि बांदा में हुआ और सब कुछ सोशल मीडिया पे, जैसा कि अपर्णा जी ने भी बताया, हम लोग भी देखते रहते हैं, जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो जो काम हुआ है मुझे लगता है वो एक शुरुआत है और बहुत ही अच्छा हम लोग को आज ये जानकारी हुई। तो आज जो बातें बताई गई, लो कॉस्ट नो कॉस्ट, और जो आपने अपने 3 मंत्र बताए सर ने, मुझे लगता है इन चीजों को अगर कोई गांठ बांध ले तो किसी भी काम में असफलता तो होनी ही नहीं है। और तो हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा भी मिली और साथ ही बहुत मार्गदर्शन मिला है कि अगर हम लोग एक दोबारा से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ करके, हम सब लोग, काफी लोग कॉर्पोरेट्स में भी रहे, मैं भी कॉर्पोरेट्स में रहा, लेकिन अब लगता है जब गांव में हम जाते हैं तो वो लगता है कि गांव को हम गांव ही रहने दें और उसको हम कैसे वहां पे रहते समृद्धि ला सकें, ताकि उसका जो मौलिक रूप है वो भी ना बदले और वहां समृद्धि भी आ जाए। तो इसके लिए जो प्रयास करने हैं उसमें मुझे लगता है कि अतुलनीय और बहुत ही सराहनीय प्रयास सर ने किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आज के व्याख्यान के लिए, आपके हम लोगों के साथ अपनी बातें साझा करने के लिए आपने समय निकाला। और मैं अवश्य जरूर समय लेकर के आपसे कोशिश करूंगा कि मुलाकात होगी आपसे, बहुत अच्छा रहेगा। और आज का इस कार्यक्रम के आरंभ में हमारे ऑफ कोर्स हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे लखनऊ मैनेजमेंट के मैं बोलूँगा एक तरह से पिता की तरह से हैं हमारे श्री आलोक रंजन जी, जो हम लोगों को हर समय मार्गदर्शन देते हैं। उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने समय निकाल करके, और आप भी अपने को जितना व्यस्त रखते हैं और जितनी सकारात्मक चीजों से हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके लेख जो छपते हैं आजकल और जिस तरह के कार्यक्रमों में, तो उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है और आपने आज समय निकाल करके किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर हीरालाल जी को मुझे शब्द नहीं है कहने के लिए कि आज आप जो अपना समय बिताते हैं, काफी जो समय, जैसे हम लोग, आपने कहा कि हम लोग कई बार क्लब में या शॉपिंग मॉल में बिताते हैं, वो एक गांव में बिताते हैं, और ये समय निकाल करके वहां से जुड़ना और उनके लिए कुछ कर पाना, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है। और आपने जो आज समय निकाल के हम लोग को उन बातों से जोड़ा है, मुझे लगता है हम सभी उससे बहुत प्रभावित हुए और ऐसी प्रेरणा मिली है कि हम सब लोग जरूर आपके इस मिशन में जुड़ करके कुछ न कुछ सहयोग अपने द्वारा जरूर चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आज समय निकाला और जुड़े। अपर्णा जी को तो खैर सभी लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका परिचय राजीव जी ने दिया, और हमारी जो एक राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता संगोष्ठी होती है उसमें भी जो एक हम लोगों का पैनल था, उसमें आपने बहुत ही संचालन अच्छा किया था। और आज तो संचालन जिस तरह से आपने कई ऐसी चीजें निकलवाई, कैसी सूचनाएं, कई ऐसी बातें निकलवाई जो डॉक्टर हीरालाल जी से, जो शायद मुझे लगता है आप सभी लोगों को और हमको भी बहुत प्रभावित की। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी आपका, इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी आपको संचालित करने के लिए। मैं सभी जो हमारे सम्मानित सदस्य यहाँ पर हैं, मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर कीर्ति नारायण जी हैं, शशि जिंदर जी हैं, आनंद जौहरी जी बहुत दिनों बाद हम लोग उसके साथ वर्चुअली शरीक हुए हैं, गोपाल चतुर्वेदी जी, सभी को मैं नाम तो अवश्य नहीं सबके ले पाऊंगा, लेकिन आप सभी का एक बार पुनः बहुत धन्यवाद। हमारे लखनऊ मैनेजमेंट के इस पूरे कार्यक्रम के जो पुरोधा हैं, जो जनक हैं, हमारे राजीव प्रधान जी आज बहुत ही रोचक कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रमों की सूत्रधार हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का, अपनी लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की। और हम लोग बहुत जल्दी ये चाहेंगे कि मैं देख पा रहा हूँ पार्वती जी भी हैं हमारे इसमें, बहुत एक्टिव रहती हैं वो, तो हम जरूर चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम सब लोग मिलें और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग फिजिकली मिल करके, पर्सनली भी कुछ बहुत शीघ्र ही ऐसा करें कि आगे हम इसको और गति दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का एक बार पुनः, और पुनः मिलने की इच्छा के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much sir. Thank you. LMA stands with you, Dr. Hiralal sir, and we are together and we would love to walk with you. Thank you very much. Take care and stay safe. Thank you very much, Aparna ji. Thank you very much. Thank you. Take care and stay safe.